Campus is graphical user interface. Okay, or here command base. So for learning, we prefer command based. Okay. Now we want to create new database. So type here. Right now, see it is showing test database. So say here use MyDB. Everybody type like this. Use MyDB. Actually, database name आप कुछ भी दे सकते हो. If this database does not exist, it will be created, and if it exists, then it will become current database. Right now, in my case, this MyDB database already exists, so it will just switch to this existing database. इसमें इतना data है 368 kilobyte का. So in your case, this database does not exist. It will be created, and it will be also switched to this database MyDB. तो देखो ये switch to DB MyDB और यहाँ देखो test के जगह MyDB दिख रहा है. Correct? So have a check on this. Now there is no test. So your current database is MyDB, means you are working in MyDB database. So MongoDB में कैसे होता है क्या? So we create our own databases, and database contains collections, and each collection contains 0 to many documents. Okay? तो अभी जो मुझे आपको प्रैक्टिकली दिखाना है वो पूरा इसमें है MyDB में. तो आई विल क्रिएट न्यू डेटाबेस फॉर योर बैच. तो मैं बोलूंगा यूज और आपका बैच Node.js. आपका बैच आईडी क्या है? ओके, बैच आईडी. हाँ, मिल गया. 25A 131 DCH. तो ये डेटाबेस मैं आपको आपके बैच के लिए बना रहा हूँ. तो ये ओके. अदरवाइज मेरे पास ऑलरेडी MyDB है, तो यू शुड गो फॉर MyDB. Now right now this is blank database, right? Suppose you say here show collections. Nothing is there. To show collections, this command is used to display all the collections in that particular database. अगर आप बोलेंगे show DBS, तो एक बार टाइप करो show DBS. So does it show your this database? Does it show your this database?
So does it show your this database? हाँ, अच्छा. हेलो ऑनलाइन पीपल. तो आप ये जैसे नोड जेस 25 ये 130 एंड डिस्प्ले मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है. तो आपको MyDB दिखाई दे रहा है क्या? नो सर. हाँ, नहीं का यस. नहीं दिख रहा है सर. हाँ, because right now it is empty database. So if you want that is to be displayed in this list, then in that case at least it should have some collection. तो एक हम collection create करते हैं, db dot create collection. डबल कोट या बोलो P small products. जरा zoom करता हूं मैं so that it can be shown to you. देखो db dot create collection ये ठीक तरह से टाइप करो and ये आपका collection का नेम. Okay, that will be created in your case in MyDB because your MyDB is a current database. MyDB आपका current database. तो enter की प्रेस करो. Now see, okay, 1. It is created. Now if you say show collections, it is showing products. Now we will perform today CRUD operations. यानी कि ये जो collections बनाए products नाम का, उसके अंदर document insert कैसे करें, get कैसे करें, update कैसे करें, delete कैसे, ये सारे functionalities हम देखेंगे जितना होगा. Otherwise we will continue tomorrow. ठीक है? तो my friends, ये create हुआ. यस सर. अभी बोलो शो DBS. तो अभी ये जो डेटाबेस है ये दिखना चाहिए लिस्ट में क्योंकि इसके अंदर एक कलेक्शन आ गया. एंड ये देखो ये दिखाई दे रहा है 8 किलोबाइट. तो आपके केस में MyDB दिख रहा है 8 किलोबाइट का. यस सर. हाँ. नाउ वी आर स्टिल इन दिस सेम कलेक्शन. Now, in this collection, we want to insert the document. To insert the document, there is a command db dot your collection name products and then insert one, okay, or insert many. तो दोनों हम use करेंगे. First of all, insert one. This is a method which is working like a command, and within this method, MongoDB document is always following JSON object format. Which format? JSON. तो हमें यहाँ JSON object pass करना पड़ेगा. So you already know JSON object is in okay curly brace, and in the JSON object you know data is always stored in the form of name value pair, key value pair आप बोल सकते हो, and every name must be of string type. Value can be any type. Value can be number. Value can be string. Value can be boolean. Value can be array, value can be nested document. ऐसा हो सकता. तो now name यानी कि product का name first document. जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ laptop, then comma, again brand, double quote में consider में बोलता हूँ HP and price में बोलता हूँ 58,900.00. So first document we will be inserting in this MongoDB, local MongoDB. Yes, press enter key. So do you get this message from MongoDB server that your document is inserted successfully, acknowledge true and inserted ID? तो आपके हर एक MongoDB डॉक्यूमेंट को बाय डिफॉल्ट एक यूनिक आईडी मिलता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट आईडी.
that is internally created by MongoDB server. So please confirm this. Yes, sir. Now suppose I want to check whether this document is there or not. So type here db.products.find. Find method or this command which you use on some collection. It returns all the documents in that collection. It returns what? All the documents. यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे रिटर्न करेगा. तो ये देखते हैं. तो इट इज अरे ऑफ डॉक्यूमेंट. ये स्क्वायर ब्रैकेट देखो. स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि अरे ऑफ डॉक्यूमेंट. अभी फिलहाल तो एक ही डॉक्यूमेंट है. ओके. तो नाउ एवरी डॉक्यूमेंट हैज बीन असाइन वन built-in field of which name is underscore id. और जो ऑब्जेक्ट आईडी है उसका वैल्यू आता है यानी कि डॉक्यूमेंट आईडी. That is represented by underscore id field by default. And these fields you have inserted name, brand, and price. This is how we create MongoDB document. So any doubt you have? No, sir. Working? Yes, sir. Working. Okay. Now same thing. This we can do using graphical user interface with the help of MongoDB Compass. In MongoDB Compass, आपका ऑलरेडी कनेक्शन हो चुका है ना कि नहीं हुआ? ओके. तो इसमें देखो ये लोकल होस्ट 270 से इसमें जितने भी डेटाबेसेस वो दिखा रहा है. अभी आपका डेटाबेस तो ये देखो ये 130 DCH. इसमें देखो ये प्रोडक्ट कलेक्शन. जस्ट क्लिक दिस और इसमें ये देखो ये प्रोडक्ट कलेक्शन. इफ यू क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट कलेक्शन इट विल शो दैट डॉक्यूमेंट हियर. तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. लर्निंग अगर करना है तो ये जुआई से समझ में नहीं आता. ज्यादातर कमांड प्रॉम्प्ट से समझ में आता. बट एज इट इज द फर्स्ट डे आई जस्ट वांट टू मेक यू फैमिलियर विद दिस. तो यहाँ देखो अगर आपको यहाँ से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से कोई न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो यहाँ एक बटन है ऐड डेटा. इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउन एरो तो देयर आर टू ऑप्शंस, इंसर्ट डॉक्यूमेंट और इंसर्ट जेसन फाइल. तो वी वांट टू इंसर्ट अ डॉक्यूमेंट. ये डाउन एरो के ऊपर क्लिक करो, ऐड डेटा के ऊपर, इंसर्ट डॉक्यूमेंट. एंड नाउ हियर जो आपने उस दिन कंपास में सॉरी एटलास में देखा था क्लाउड में सेम है, लेकिन ये लोकल है. ये हमने आपके हमारे खुद के मशीन पे डाउनलोड करके किया है, राइट. तभी ये जो जितना भी दिखाई दे रहा है ये सिलेक्ट करो, ये लाइंस डिलीट मार दो, डिलीट. और ओपनिंग क्लोजिंग कर ले, प्रेस टाइप करो, एंटर की प्रेस करो. फिर नाउ हियर नेम मैं बोलता हूँ आयरन, ब्रांड मैं बोलता हूँ फिलिप्स, प्राइस बोलता हूँ 2000 रुपीज. तो using graphical user interface way we also want to insert the document. आपके केस में यहाँ mydb.products ऐसा दिखना चाहिए टू कलेक्शन, राइट. mydb.products. अभी ये इंसर्ट बटन डिसेबल है क्योंकि उस दिन मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट ये जो फॉर्मेट है ये जेसन फॉर्मेट होना चाहिए. एंड इन जेसन ईच एंड एवरी नेम, ईच एंड एवरी की इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप. तो ये स्ट्रिंग नहीं है. अगर आप यहाँ डबल कोट देंगे ऐसा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता. ये देखो मैं डबल कोट देता हूँ, हो सकता है नहीं कि 100% सॉल्व होगा. अभी ये डबल कोट दे और जब मैं यहाँ कंप्लीट करूँगा ये देखो इंसर्ट बटन आ गया. ओके. लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है. इफ यू रिमेम्बर भी कंसिडर ये प्रॉब्लम है प्राइस का. तो यहाँ देखो ऑप्शन है फॉर्मेट ऑप्शन. फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करो तो सारे कीज डबल कोट में आ जाएंगे. और अभी इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करो. Now this new another document we have inserted using graphical user interface mechanism.
Click on insert. So see, these are the two documents. Have you got? और इसका आईडी अलग होगा. ऑनलाइन पीपल, इज इट वर्किंग? Yes. Yes. अभी कमांड प्रॉम्प्ट से ये फिर से ये फाइंड वाला है ना, ये रिपीट करो. यानी कि आप अप एरो की यूज कर सकते हो आपका कीबोर्ड का टू सी द हिस्ट्री ऑफ कमांड्स एंड एंटर की प्रेस करो. सो टू डॉक्यूमेंट शुड बी देयर. So just let me zoom in, zoom out like this. Working? Yes. See, this is the list of all the documents. Now let's insert multiple documents using command prompt. So db dot products dot insert many. Insert many. M capital, camel case, all methods follow. कमांड बोल सकते हैं आप. कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन. तो यहाँ आप टाइप करते हैं जरा केयरफुली. db dot product dot insert many. First of all, give the round opening bracket, parenthesis, then give the square bracket. और इसके बाद आप एंटर की प्रेस करो. एंटर की, तो इट विल कंटिन्यू द कमांड. ये देखो, ये 3 लाइन दिखाई दे, 3 डॉट, सॉरी. These 3 dots are shown here. It indicates that your command is continued. Opening curly brace, the first document we want to insert. So we are going to insert array of document, इसलिए ये square bracket दिया है. ये end में close करना पड़ेगा. उसके बाद ये round bracket भी close करना पड़ेगा. तो now अभी हम यहाँ multiple document, अभी मुझे यहाँ नहीं टाइप करना है, इसके next वाले लाइन पे. तो enter की प्रेस करो, एक कंटिन्यू हो रहा है. तो name, okay, name. Suppose I say again mobile, comma, then brand, say OnePlus, comma, then price, I said 26,800.00. अगेन एंटर की प्रेस का. अभी नेम के बाद कॉमा आना चाहिए, ब्रांड के बाद कॉमा, प्राइस के बाद कॉमा नहीं देना है क्योंकि प्राइस लास्ट फील्ड है. एंटर की प्रेस करो, क्लोजिंग करली ब्रेस दो. तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट हुआ. उसके बाद फिर कॉमा दो. प्लीज गिव द कॉमा. देन अगेन एंटर की प्रेस करो, देन ओपनिंग करली ब्रेस. ओके, एंड से हियर नेम, refrigerator, brand, okay, Whirlpool, price 35,000.00. This is second document. Again curly brace close करो, comma दो, comma, and enter key. Again opening curly brace. Again I will say name. I say again laptop. Okay, brand Lenovo, price 75,300, 200. Like this. So consider these are the 3 documents which we want to insert. तो फिर अभी यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करो. एंड ये जो इंसर्ट मेनी का जो ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है उसका करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस. एंड उसके बाद अभी एंटर की प्रेस करो. सो नाउ सी 3 डॉक्यूमेंट हमने एट अ टाइम इंसर्ट किए. ओके, तो इंसर्टेड आईडी देखो 0 1 2, ये ऑब्जेक्ट आईडी. ओके,
Is this working? All three documents inserted online memo. Yes, sir. ठीक है, तभी फिर से अप एरो को यूज करो और ये फाइंड मेथड, ओके, which will return all the documents. देखो all जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे रिटर्न db.products.find. So these are total 1 2 3 4 5. Total we have inserted 5 documents. अभी कंपास में जाओ, कंपास में भी यहाँ 2 ही डॉक्यूमेंट दिख रहे, रिफ्रेश बटन है यार, ओके, उस रिफ्रेश बटन को क्लिक करो, देखो इधर ही है रिफ्रेश बटन, जस्ट क्लिक हियर, ये देखो 1 to 5 of 5 documents. So you just refresh, this is refresh button here, graphical user interface, and see these are all documents, right? Yes or no? Should we proceed? Yes. Now, next is we want to find only one document. So there is a command db.products.find1 ONE, and it will return the first document. जो पहला डॉक्यूमेंट आपने इंसर्ट किया था वो रिटर्न करेगा. तो ये कमांड टर्मिनल पे हम यूज कर सकते हो. ये देखो, जो भी आपने पहला डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया होगा वो रिटर्न होता है, बिकॉज फाइंड वन, ओनली वन. तो फाइंड विल रिटर्न ऑल डॉक्यूमेंट्स, फाइंड वन विल रिटर्न ओनली फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. सो डोंट वरी, आपके मन में ये क्वेश्चंस हो गया, अरे कुछ क्राइटेरिया वगैरह यूज करके वी विल बी डूइंग एवरीथिंग. जैसे कि आप एसक्यूएल में वेयर क्लॉज यूज करते हो, ऑर्डर बाय यानी कि सॉर्टिंग करते हो, एवरीथिंग वी विल बी डूइंग हियर. दैट इज व्हाट लर्निंग ऑफ मोंगोडीबी. तो ये तो बिगिनिंग है आज, अभी हम सिर्फ CRUD ऑपरेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं. फाइंड वन से पहला ही डॉक्यूमेंट रिटर्न हो रहा है ना. ओके, ये देखो, ये फाइंड वन, पहला डॉक्यूमेंट जो भी होगा लिस्ट में वो रिटर्न होता है. तो इज इट वर्किंग? Yes, sir. Now suppose I want to update the price of the particular document. यानी कि consider I want to update the price of the particular document. So now how to do that? यानी कि मुझे बस ये जो डॉक्यूमेंट है, नेम लैपटॉप ब्रांड HP और इसका जो प्राइस है अभी 58,900. तो हाउ टू अपडेट अ डॉक्यूमेंट? ऑब्वियसली वी ऑलवेज अपडेट अ डॉक्यूमेंट एज पर क्राइटेरिया. अगर आप एसक्यूएल की भी बात करें तो एज पर क्राइटेरिया आप अपडेट करते हो. अगर क्राइटेरिया नहीं देते हो तो सारे डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाते, यानी कि सारे रोज अपडेट हो जाते. तो बेस्ट safer side is always use the criteria. Okay, so now to update any document, so there is a method db.products.update1. First one update one. Okay, and ये update one जो मेथड है उसमें आपको 2 पैरामीटर पास करने पड़ते इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. ये पहला ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, ऐसा इसका सिंटैक्स. तो db.products.update1. So we want to update the document in the products collection. So this update one method takes 2 parameters. Okay, the first and second both are JSON object. तो फर्स्ट में आपको क्राइटेरिया देना है, यानी कि which document you want to update. So consider I want to update a document having brand HP and name laptop. तो जैसे कि यहाँ देखो name, so this is criteria, name laptop. ओके, और मैं बोलता हूं प्राइस. तो अभी मुझे अपडेट करना है प्राइस. नाउ हाउ टू अपडेट अ प्राइस? तो देयर इज अ मोंगोडीबी इनबिल्ट ऑपरेटर $set. ये आपको यूज करना पड़ेगा. एंड देन set itself is taking object as a value. तो ये अगेन मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट और जेसन ऑब्जेक्ट, वी विल नॉट से मोंगोडीबी, जेसन ऑब्जेक्ट.
तो नाउ प्राइस वी वांट टू अपडेट अ प्राइस और नया वैल्यू, अभी जो वैल्यू है 58,900 है, तो कंसिडर मैं बोलता हूँ 65,000। लेकिन अगर आप ठीक तरह से देखेंगे लैपटॉप वाले कितने डॉक्यूमेंट है? नहीं, लैपटॉप वाले ये देखो इधर, लैपटॉप वाले ये भी एक लैपटॉप है ना, HP 58, ये हमें पहले रिटर्न हो रहा है फाइंड वन से। लेकिन अगर आप स्क्रॉल करेंगे डाउन तो देयर इज वन मोर लैपटॉप, ये देखो ये लैपटॉप लेनोवो का है, बराबर है, प्राइस इतना है। तभी हमें ये देखना है कि ये दोनों लैपटॉप और जितने भी लैपटॉप है वो सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करता है क्या? नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस, ये हमें चेक करना है। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ ये यूज कर रहे हैं नेम लैपटॉप, तो ऑब्वियसली इट विल अपडेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स ओके विद द नेम लैपटॉप, ये बाय नेचर होना चाहिए। बट माय फ्रेंड्स, ये जो मेथड हमने यूज किया है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड? अपडेट वन है क्या अपडेट मेनी है? One. ये मेथड की बात कर रहा हूँ। दिस इज अपडेट वन ना, तो इट विल अपडेट ओनली वन डॉक्यूमेंट, दो मल्टीपल मैचिंग डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड, यानी कि जो पहला डॉक्यूमेंट होगा वही अपडेट होगा। ओके, लैपटॉप के आपके पास 100 डॉक्यूमेंट्स होंगे, 1000 भी हो सकते, बट आपने बोला है db.product अपडेट ऑन, तो जो भी फर्स्ट लैपटॉप डॉक्यूमेंट होगा वही अपडेट होगा, क्योंकि मेथड का नाम अपडेट वन है। ओके, तभी इसको हम कंप्लीट करते हैं, इंटर की प्रेस करो। हाँ, तो आपको कुछ दूसरा आउटपुट आ रहा है, देखो अभी इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपडेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंसर्टेड आईडी ना लाएगा, करेक्ट। एक्नॉलेज टू मैच काउंट वन, यानी कि उसको एक डॉक्यूमेंट मिला है ये नेम लैपटॉप वाला, क्योंकि मेथड का नाम अपडेट वन है। मेथड का नाम क्या है? अपडेट वन, तो उसको एक डॉक्यूमेंट मिला और उसके अंदर ओके मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉडिफाइड काउंट वन। अभी आप फिर से ये db.product.find वन ये मेथड फायर, तो यहां देखो ये प्राइस 65,000 हो गया। दिस इज आवर यूजिंग सेट ऑपरेटर, सेट इज अपडेट ऑपरेटर, वी अपडेट अ particular field value of the document, MongoDB document. You can update multiple values, यानी कि multiple fields आप अपडेट कर सकते, कॉमा लिस्ट, प्राइस कोलन 65,000 कॉमा ब्रांड व्हाटएवर, ठीक है। तो ये अपडेट हो रहा है क्या ऑनलाइन पीपल? Yes. Yes. तो वैसे ना अपडेट मेनी ये मेथड भी है, तो आप एक काम करो, जस्ट अप एरो की यूज करो 2 बार और देखो ये अपडेट वन की जगह अपडेट मेनी बोलता हूँ, अपडेट मेनी ये भी मेथड है। नेम लैपटॉप, सेट पे मैं थोड़ा अलग प्राइस देता हूँ, 65,000 के बजाय मैं बोलता हूँ 88,000। अभी जितने भी लैपटॉप होंगे, जितने भी, दैट कैन बी 2, दैट कैन बी 100, दैट कैन बी 1000, सारे लैपटॉप्स के प्राइस अपडेट होंगे। ओके, तो एंटर की प्रेस कर दो, तो देखो अभी मैच काउंट 2, मॉडिफाइड काउंट 2, करेक्ट, मैच काउंट 2, मॉडिफाइड काउंट 2। अभी हमें देखना है कि अरे ये प्राइस अपडेट हुआ क्या नहीं। अपडेटेड प्राइस इतना है, कितना? 88,000। तो फिर टाइप करो db.products.find, तो देखो ये लैपटॉप लेनोवो का भी अपडेट हुआ 88,000, और ऊपर और एक लैपटॉप है ये देखो HP का, ये भी अपडेट हुआ, करेक्ट। अभी कंसिडर है ये जो फाइंड मेथड से हमें रिटर्न हो रहे हैं वो कितने डॉक्यूमेंट है? ऑल, तो ऑल यानी कि वो डिपेंड्स कितने डॉक्यूमेंट है, यानी कि वो 1000 भी हो सकते हैं 10,000, उसमें से हमारे डॉक्यूमेंट सर्च कैसे करें? तो आप फाइंड मेथड को भी क्राइटेरिया पास कर सकते हो, जैसे कि यहाँ फाइंड ओनली लैपटॉप्स, तो फाइंड मेथड को बोलो नेम कोलन लैपटॉप, और सिर्फ लैपटॉप्स वाले डॉक्यूमेंट ही रिटर्न करेगा, जितने भी लैपटॉप वाले डॉक्यूमेंट होंगे बस वो, मींस इट माइट बी 10, इट माइट बी 100, देखो
only laptops. So you can verify. तो देखो update many, updated all the documents. ठीक है my friends? Is it working? Yes, sir. Yes, sir. अभी लास्ट Yes, sir. करते हैं कि कंसिडर मुझे ओके ये दोनों लैपटॉप है लेकिन उसमें से एक डॉक्यूमेंट जो है वो डिलीट करना है तो टीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट डिलीट वन अगर आप बोलेंगे तो इसमें क्राइटेरिया देना है जैसे कि नेम ओके और लैपटॉप नाउ वी हैव टू लैपटॉप्स वी विल चेक कितने डिलीट होते वन मेथड है तो ऑब्वियसली वन ही पहला जो भी डॉक्यूमेंट मैच मिलता है वो डिलीट होगा देखो डिलीटेड काउंट वन यानी कि डिलीट हो गया है अभी फिर से फाइंड मेथड यूज करो ये टीबी डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड नेम लैपटॉप तो देखो एक ही डॉक्यूमेंट है तो यहाँ देखो लिस्ट में दो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे थे पहले तो एचपी वाला डॉक्यूमेंट जो पहला डॉक्यूमेंट था वो डिलीट हो गया यूजिंग दिस टीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट डिलीट वन सिमिलरली देयर इज अ मेथड डिलीट मेनी इट विल डिलीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इट विल डिलीट व्हाट ऑल द एज पर क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया पास कर बट डोंट फायर डिलीट मेनी बस वो याद रखो वो मेथड डिलीट मेनी अगर आप क्राइटेरिया नहीं पास करेंगे इट विल डिलीट ऑल डॉक्यूमेंट्स ठीक है यानी कि एम्प्टी क्राइटेरिया देंगे तो इट विल डिलीट ऑल डॉक्यूमेंट्स तो दिस इज CRUD ऑपरेशन व्हिच वी हैव डन देखो हमने इंसर्ट वन इंसर्ट मेनी करके देखा फाइंड एंड फाइंड वन भी करके देखा अपडेट वन अपडेट मेनी भी करके देखा एंड अभी डिलीट वन है लेकिन डिलीट मेनी भी है ओके जैसे कि यहाँ डिलीट मेनी ऐसा भी कर सकते हैं तो जितने भी लैपटॉप होंगे वो सारे डिलीट हो रहे हैं तो बट वी विल नॉट फायर दिस कमांड तो फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा अभी एक चीज करो आप सब यहाँ तक हमने ये स्टडी किया आज तो ये यहाँ से सिलेक्ट करो कंपलसरी ये जितने भी कमांड आपने टाइप किए ना टर्मिनल पे प्लीज सिलेक्ट दिस जितने भी बिगिनिंग तक यहाँ तक ये देखो ओके ये कॉपी करो और एक नोटपैड ओपन करो नोटपैड में वो पेस्ट करो और सेव कर लो वो एज अ फाइल ओके आज के नोट्स दैट वुड बी गुड तो क्योंकि यहाँ आपने जो भी आज सीखा है उसका स्टेटस उसका आउटपुट कमांड सब कुछ है इसमें तो वो सेव कर लो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग तो नोट्स भी हो जाएंगे आपको किसी बुक की भी जरूरत नहीं फिर भी आई विल गिव द बुक डोंट वरी कुछ एक्स्ट्रा आपको लर्निंग करना है तो बुक से आप पढ़ सकते हो लेकिन ये हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट है तो ये सारा सेव करके रखो तो ये देखो ये कमांड्स भी जाएंगे उसका आउटपुट भी दिखाई देगा तो टुडे विल स्टॉप हियर लेट मी टेक अ टी